Hi, Rosie. Hello, ma'am. Good evening, everyone. It's 7, so we should start, I guess. Yeah, Ma'am, are you because ready? yeah. When I start speaking ना तो time को पता नहीं चलता. तो I always believe to Yes, come on time when about speaking. yes, ma'am. Yes, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है mental health के लिए. Okay, so starting with the introduction of our page. Welcome to the live stream on our page at the rate Connecting Psychologically. We are a group of mental health advocates who accepts you in the way you are. And we have started this page with the intention of raising awareness regarding mental health and also providing you the authentic psychological based data. uh, an optimum level of stress is required for the performance to be the best, right, ma'am? But that level of pressure differs for each and every individual. And in our daily life, we have so much of ups and downs. And again, every individual has their own threshold point. So, considering this scenario of unbalanced mental health due to daily life hassles, I would like to request our speaker for the healthy discussion and for the answers of the questions of our followers. Miss Pallavi Gupta, welcome. I welcome you, ma'am. Thank you. She is consultant and psychosocial therapist. Ma'am is alumni of Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, and also founder of Angan Counseling Services, Varanasi. She has 15 years of work experience, and today she is with us and to discuss on to answer our questions regarding mental health and basic domains of our life, right, ma'am? Yeah. So before discussing questions of our followers, I would like to hear your viewpoints. I would like to get insight into two important sayings. Two Mm-hmm. important sayings that first is that without stress there would be no life, and Right. second is that there is no health without mental health. So it is how important we know about this. Every individual knows about this, but how important it is to understand it and to accept it कि स्ट्रेस के बिना लाइफ नहीं है और मेंटल हेल्थ के बिना कोई हेल्थ नहीं है. Okay, How so I will important? start with the first sentence that there is no life without stress. So I am just like before starting, I would like to ask you a question, Rosie. Here that like if I'll ask you to give the number on the scale of 0 to 10 कि कितना स्ट्रेस लिया आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का एज अ ऑर्गेनाइजर तो Yes, व्हाट वुड यू लाइक टू आंसर. I would like to answer. It was neutral, so I would like to answer for 5 because an optimum 5. level of stress was there. Yeah. Yeah. So, like regarding me, if you will ask, I'll say that I'll divide this program into two as a speaker. So, as a speaker, I have no stress related to this. But coming on live, as I'm not very friendly to Instagram and also I'm not like I'm therapist. I'm not a public speaker. So coming in the front of like people live and where there is no audience and we are not used to all these things. So I also give the stress level to 5 to this structure. Okay. So Okay. considering this, that like you are an organizer, you have to plan so many things. Okay. So you are taking an optimal level of stress, that what we call positive stress, so that we can have the better output and better outcome. And that positive stress leads you to preparation of the program, making the charts and making the posters, and going with the flow and how will you go through it and letting the people know to message you and then you move ahead with the program. Okay. So understand and like me, I got rehearsed the how to come live and try to look better so that people coming to see that कि हाँ मैम एकदम से जल्दी होके नहीं आ गई kind of. So though I am like that. So this is the thing that yeah मतलब we have to like that optimum level of stress helps us to plan out. So Yes, yes. whenever we are not prepared, whenever we are actually like take these things as a like it's a difficult thing, the same thing which is like in the same situation, your stress is for different thing and my stress is for different thing.
Okay, so kind of thing we have to understand that in the same situation, the preparation level goes different. In the same situation, the mental preparedness goes different. In the same situation, the readiness and the how we'll perform the activities is actually like related. The stress related to different things is different. So for a Yes. same, that is the thing. For a same thing where the preparedness is there, where readiness is there, it is not stress. And for the same thing where there is no preparedness, where you feel that this is a difficult thing for me, where the readiness is not there, it becomes a stress. And stress to that level that you feel it is like a tension. Okay, so for example, एक home manager है and she's very good at doing things and home management. आज खाना क्या बनेगा? This सवाल is not a difficult for her thing and she can manage it very well. ठीक है? Yes, yes. Well, like she has plans for this, and for the girl who has like spent the whole like life in the college and just went to the home as a housewife, and then this question आज खाना क्या बनेगा will be like giving her lot of stress. Yes, Oh ma'am. my It god, ये is तो for मुझे us. पता ही नहीं ना. It is for us. Like, it is Yes, like yes, yes. अभी तुम joint family में जाओ and anybody ask this question to you कि आज खाना क्या बनेगा, तो you're like ये हमसे मत पूछो, किसी और को पूछो, किसी और को पूछो, kind of thing. Yes, So yes, that yes. is the thing. The same question get difficulty and give you stress. So stress is like that. What gives us more difficulty? Stress turns into tension, and then tension turns into mental problems. So Yes. where the things we are not prepared, we have to actually learn some kind of soft skills. We have to always accept that life is going to give that situation which we are not actually prepared. So maybe the stress will occur. That is the thing. Only this thing we have to understand. We can't prepare ourselves for 100% of situation. So automatically the stress will be there for the situation for which we are not prepared. And the second thing, again, that if there is no health without mental health, it's very true. Anywhere, like now, I have started going to the cancer hospital and I can share you the experience there. I was feeling that it will be little difficult as they are fighting with such kind of illness, so it is going to be very difficult and the counseling will be difficult. I will tell you my counseling experience there is little lighter side than the dealing with the normal, so called normal girls in Vasanta college. So Yes. I would just Okay. want to tell you there the mental health is actually very good. The people Okay. who are fighting with cancer, their mental health is really strong. They are actually prepared for their situation. They are fighting it since so many years. So they are doing it well. So mental health is okay. So these big chronic illness is not affecting them. But the like if we'll compare with the very like normal environment where the girls come from, the okay thing, but there is a kind of family issue, there's a kind of relationship issue, there's a kind of career issue, there's a kind of sleep disturbance, and these things actually gives you a toll on your head, and that time you are not able to plan a single thing, and that fracture of your brain is actually not helping you out to take a small decisions of your life. देन एंड यू फील लाइक अब उसमें अगर मैं ये क्वेश्चन पूछती, सोच लो तुमको कैंसर हो गया तो तुम क्या करोगी, तब तो हाँ. ऐसा हो जाएगा कि उनको डर लगेगा कि जैसे हार्ट अटैक आ जाता है. दैट जी. थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मेंटल हेल्थ इज एक्चुअली द थिंग व्हिच गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू फाइट एनीथिंग. And if it is not there, you are not able to fight anything, not a single situation of your life, and that will give you a like lot of trouble in a if absence of mental health. So we have to understand for our physical health also mental health is required a lot. That is very Both are important. parallel. So Yeah. yeah, so now we can go ahead with the question. I think Yes, ma'am. this makes the sense that why we need our mental health to be very important, Yes, because we ma'am. have to go through difficulties at every point of life, and we have to हाँ. find those difficulties only through our strong mental healthy situation. ठीक है. यस मैम, यस मैम. हाँ. और जैसा कि हमने टॉपिक ही रखा था कि इस मेंटल हेल्थ डे पे हम लोग डिस्कस करेंगे विथ ईच एंड एवरी डोमेन्स, मतलब डेली हैसल्स ऑफ आवर लाइफ का. तो मैम हमने जो स्टोरी डाला और उसमें जो हमारे फॉलोअर्स ने मेंशन किए हैं हमें, इट इज लाइक बहुत सारे हमें डीएम्स आए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस डीएम्स, थैंक यू फॉलोअर्स फॉर दिस. एंड उनके जितने भी डोमेन्स में आए हैं मैम प्रॉब्लम, उन्हें हमने सॉर्ट कर लिया है. एंड द रेंज इज फ्रॉम 20 to 25 ईयर्स. दे आर 18 to 25 ईयर्स के रेंज में. इट इज ऑल्सो लाइक स्पेसिफाइड है एज रेंज, एंड प्रॉब्लम्स को हमने सॉर्ट करके डायमेंशंस में कन्वर्ट कर रखे हैं. ओके, एंड मतलब काइंड वी ऑफ विल बी डीलिंग कंटेंट एनालिसिस किया है आपने.
हाँ जी मैम, क्योंकि हर Okay. इंसान का बहुत चीज पर्सनल हो जाती है, तो वी हैव टू कीप इट Hmm. कॉन्फिडेंशियल। Hmm. तो हमने सोचा कि ठीक है, हम लोग सॉर्टेड वे में पूछेंगे। Hmm. Hmm. तो Hmm. Hmm. जो Solid. पहला Hmm. क्वेश्चन है वो है मैम, Hmm. Hmm. विथ रिस्पेक्ट टू अ गर्ल हु हैड मेंशन्ड अस विद द कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। Hmm. Hmm. उनकी प्रॉब्लम ये थी मैम, प्रॉब्लम का उन्होंने उन्होंने जो बताया कि सपोज हमें पता होता है कि इस वक्त हमें कंसंट्रेशन यहाँ पे देना है, Hmm. बट हम Hmm. उस कंसंट्रेशन को, उस अटेंशन को नहीं दे पा रहे। We know कि I have to complete it within this time, but I'm not able to give. For a while, we try to change our mood by seeing YouTube or Facebook or Instagram newsfeed. But after that also, we are not able to concentrate on that thing. Hmm. तो ये Hmm. 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 concentration issue जो है मैम, it is like too much giving too much problem with respect to mental health. तो Hmm. इस पे Hmm. मैम आप बताइए वो। ठीक है. जी। Before I start, I would again say this, that I am an individual therapist and I see every individual as a like with a some kind of problem and some kind यूनिक of वे। like unique way, and they have their strengths and their things. So I am not a public speaker, so I will not go with the like motivational things and which is going to give you a kind of purview कि हाँ ये सुनते ही मुझे बहुत motivation आ गया. I'll give the reality that what how problem exists with the individuals and how as an individual we can deal with those things. So understanding this as a concentration problem, as the girl has mentioned, we all know that we all go through this thing. Concentration attention is a cognitive थिंग. ठीक है, इट्स अ कॉम्पोनेंट। कॉग्निटिव एक्टिविटी. इट इज कंप्लीटली वील से कि एक ब्रेन का एक्टिविटी है वेयर द ब्रेन इज इन्वॉल्व एंड वी समटाइम्स से दैट हियर वी कांट कनेक्ट इमोशंस. ठीक है, but when your mind is not okay, when you are not feeling relaxed, and when you are not okay with your mental state, then it happens that you are not able to focus on your attention and concentration thing. So automatically your affect yani your emotional state is affecting your cognition. ठीक है, your cognitive activities, your cognitive. तो फर्स्ट थिंग जो मेंटल हेल्थ में डिस्टर्ब होता है वो कॉग्निशन होता है जनरली. ठीक है, कि हम सबसे सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग हमारा इम्पेयर हो जाएगा, कंसंट्रेशन अटेंशन इम्पेयर हो जाएगा. इसका मतलब कहीं ना कहीं वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग विच आई नीड टू वर्क अपॉन इन द अफेक्ट एरिया और इन द थॉट्स का एरिया और इन द लाइक इमोशनल एरिया और इन द बिहेवियरल एरिया. there is something to work upon. हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि attention is not okay, that my mental health is not okay. There is a like relation of this affect cognition and then emotional state and cognition and behavior we have to understand as a complete normal mental health ka situation. And one is affected means somewhere other is also affected, and यस। this thing we have to focus on. Okay, so when if we'll talk about the normal thing कि ठीक है attention generally मेरा नहीं लग रहा है, तो somewhere we have to find out that what is going inside the mind, and that thing need to be settled down first. Second thing you have to take care of, like okay I'm settling down, still I'm not able to concentrate, then let's do some cognitive exercises, because it happens so many times that my brain has not worked, have not functioned properly since so many days. So maybe it is happening that I'm not able to focus because practice छूट गई. ठीक है, तो जी। कहीं ना कहीं लाइक जैसे जैसे साइकिलिंग का होता है, जैसे रेसिंग का होता है, जैसे स्पोर्ट्स मैन अगर अपनी प्रैक्टिस छोड़ दे तो दे विल नॉट परफॉर्म बेटर. Similar way in यस। our brain, like if we are not doing some kind of practice and we are just sitting idly watching television the whole day, just like looking at the screen and doing something on the Facebook or Insta and not going some doing any cognitive exercises, automatically हमारा practice जाहिर सी बात है कि attention concentration affected होगा. ठीक है, तो let's do some cognitive exercises which are like so many. You can have the letter cancellation test, you can have some yoga and meditation to bring the focus back. You can do some kind of like cognitive exercises. You just search cognitive exercises on internet and you will get long list that what you can do. In our front we can help the clients how to go ahead with this thing, and not those exercises need automatically you feel the difference. So start with 1 or 2 minutes, even if you are not able to do it properly.
and then go to like 15 minutes, half an hour brain ka exercises, cognitive exercise. You will see the change and you will find the difference in your concentration and attention. So first, like step one, try to identify what are the reasons that it is getting affected, and step two, if there is no specific reason that need to be settled down, go for the cognitive exercises to increase your attention and concentration. ठीक है? Okay. Yes, ma'am. It was interesting to know. Sometimes I too face that problem. Yeah, Okay, तो ma'am, like coming to the give me next. ओके मैम, कमिंग टू द नेक्स्ट go मैम, ahead. इसी में क्या होता है कि अगर हम अटेंशन की बात करें तो मतलब कभी कभी इससे लिंक कर ले तो हमारा जो वर्क है अगर हम उसको नहीं कर पाते तो आज जो हमने प्रायोरिटी सेट की है, सपोज इतना पढ़ाई करना है हमें, तो हम करेंगे कि उसे शिफ्ट कर देंगे कल के लिए। ओके, विल डू टुमारो। कल क्या होता है मैम, कल हमारे पास पहले से इतनी चीजें होती है तो Okay. हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, तो हम कल वो पढ़ने लग जाते हैं, फिर कल वाले में से भी थोड़ी सी रह जाती है, आज में से भी थोड़ी सी रह जाती है, इधर इन वर्क एरिया बोले या हमारे में बोले, कहीं पे भी, वर्क एरिया में कहीं पे भी। तो वो जो थोड़ा थोड़ा काम बचता है मैम, उसे हम प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं, टालते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है, हमें स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है इन आवर डेली लाइफ। तो हाउ टू डील विथ दोस कि व्हेन हमारा जो प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रोसेस हम कर रहे हैं यूजिंग एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, उसको कैसे डील करना चाहिए। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो रोजी, वी आर गोइंग एक्चुअली इन द टू डायरेक्शन, दैट वन इज लाइक वी आर यूजिंग इट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, वन समटाइम्स इट इज प्रेजेंटेड एज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेसिकली तो अगर मुझसे पूछो तो वी एक्चुअली डू प्रॉपर थेरेपी सेशंस और काउंसलिंग सेशंस फॉर दिस एज अ प्रॉब्लम। ठीक है, एंड इफ इट इज प्रेजेंटेड एज अ लाइक टू, पहला अगर हम कह रहे हैं कि इफ इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, try to understand everyone who is here. Don't use it as a defense mechanism. ठीक है, don't procrastinate. We always say that don't procrastinate. Means that it is not a healthier way to deal with the things. So please don't do it, and try to manage the things by like listing it out, making a milestones. Still, if it is not covered, so we have to understand that we have to give 5 minutes extra and then complete the previous one things, and also identifying and checking the priority list and making it like that ki, most prior and most urgent, less prior and like less urgent, and then not like nothing it as a, we can count it as a priority. It is like we can do it anytime, and make like 4 boxes, and there's like I am just thinking about it. It is not the way, like it is not the thing to be think about like that. तो उसका टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं, दैट मोस्ट अर्जेंट कम्स ऑन द सेम डे, एंड लाइक सेकेंड वन कम्स लाइक एक वीक के अंदर खत्म होना ही चाहिए, थर्ड वाला आता है कि मुझे 1 महीने के अंदर खत्म करना है, और दूसरे वाले का है कि 1 महीने से 3 महीने के बीच में खत्म करोगे तो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो in this way like we actually divide the 4 boxes and we do the priority ka thing, and we just put it down there that which comes in topmost, which comes in like second box, which comes in third one, and which comes in fourth one, and accordingly finish it off. Same with goes with the syllabus कि जब हमारे पास सिलेबस होता है ना, तो these things we have to understand कि ये चैप्टर मेरा कितना तैयार है और मुझे इस चैप्टर को कितना पढ़ना है। Rosie, like when I'm talking about it, I'm actually guessing of the client who has come to me for the bank and UPSC preparation वगैरह के लिए, government job के लिए. I just give her trips. I just tell her कि see, like you have to understand that how procrastination is actually creating a problem. तो मैंने उसको बस इतना बताया that this is not the way to go with ahead with our preparation. So it is a poor defense mechanism, and don't go ahead with these things. And I just explain it in a theoretical, matlab, therapeutic way, and she understood it. And then I told that how will you go ahead with the plans कि अब procrastinate तो बचा नहीं, वो तो मेरा option है ही नहीं, तो how will you deal with the whole lot of syllabus and everything you have. She made such a great plan on her own, and every time she comes and she discusses, मैम ये वाला चैप्टर ना छूट गया और मुझे लग रहा है कि मुझे दिक्कत आएगी, and suddenly she says अच्छा इसके लिए मुझे लगता है ना ऐसा वाला पोस्टर बनाना पड़ेगा, and she actually makes the poster, and every time like उसके घर का फोटो उसने मुझे भेजा था, and she pasted everywhere in that thing. तो इतना like it is only that कि अंडरस्टैंडिंग मुझे कहाँ डेवलप करना है कि प्रोकास्टिनेट इज नॉट द वे टू डू इट। ठीक है,
अब हम ये मेरा ऑप्शन नहीं है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, उसके ऊपर आपका फोकस जाता है, तो ऑटोमेटिकली यू डू अहेड इन दैट वे. यू स्टार्ट प्लानिंग, योर ब्रेन स्टार्ट्स प्लानिंग, एंड when you plans you are automatically like doing the things on the time. ठीक है. So Yes, ma'am. planning of the brain and this cognitive activity need to be strengthened more and more, and automatically you'll see that procrastination level will go down and down. सो बेसिकली जो ये सल्किंग और वो जो इस तरह की चीजें आते हैं कि आप वीन करते रहते हो कि नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, तो आप उसमें जितना टाइम वेस्ट करते हो, गो विद द प्लानिंग. ठीक है, नहीं हुआ तो व्हाट्स नेक्स्ट. इट्स लाइक हाँ. जितना सडन आएगा यू विल बी डूइंग बेस्ट. ठीक है. तो दैट विल बी द बेस्ट वे टू डील विद द प्रोकास्टिनेशन, व्हाट आई फेल्ट. मैम ये तो ठीक है कि मतलब हाँ. प्रोक्रेस्टिनेशन का आप नहीं पता है कि वी कैन मेक 4 ब्लॉक्स एंड वी कैन उस सेट द काम में भी वी कैन प्रायोरिटीज. प्रायोरिटाइज कि हम्म. किसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, किसे हम डील कर सकते हैं, किसे हम नहीं कर सकते. बट मैम इसको सोचने तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी वो चीजें इतनी सोचने लग जाते हैं, इतनी सोचने लग जाते हैं कि वो ओवर थिंकिंग में चेंज हो जाती है. तो और ओवर थिंकिंग वो हम क्या कर रहे थे कि हम अपनी प्रायोरिटीज के बारे में सोच रहे थे, हम प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, हम उसके बारे में सोच रहे थे, बट हम वहां सोचने लग जाते हैं कुछ और, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है. हाँ मैम, एक्चुअली बीच में एम थोड़ा आई ऑडिबल? कनेक्शन का प्रॉब्लम हुआ था. ओके मैम, ओके अभी मैम. ठीक है. यस मैम, यस मैम. तो मेरा ये कहना था मैम कि अगर जैसे कि हम लोग डील कर रहे थे कंसंट्रेशन से या फिर आपका प्रोक्रेस्टिनेशन से, तो ये दोनों आपने बताया कॉग्निटिव कंपोनेंट है. द सेम इज अबाउट आवर थिंकिंग आल्सो, थॉट प्रोसेस भी हमारा कॉग्निटिव है. तो हम कॉग्निटिव अगर सोचते हैं, प्लान करते हैं कि ओके वी कैन डील दीज थिंग्स इन सच एंड सच वे, प्लानिंग तक तो मैम ठीक है, पर कभी कभी क्या ठीक है. होता है ना, हम उसको इतना सोचने लग जाते हैं, उसके फ्लॉज, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके क्या होंगे नहीं होंगे, मैम वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है और वो कुछ और ही रूप ले लेता है बेटर से. तो हाउ टू डील विद दैट ओवर थिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट जो कि नेगेटिव ठीक होता है. है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा. हाँ. देखो रोजी, लाइक योर क्वेश्चन इज लाइक द वे आई एम सेइंग कि आराम से प्लानिंग जैसे आपका डेवलप होगा एंड योर लाइक दिस प्लानिंग ब्रेन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, द ऑल थिंग्स विल सेटल डाउन. क्वेश्चन तो हर बार यही आता है कि मैम करे कैसे, हाउ टू डू दैट. हाँ. दैट इज द थिंग दैट हाँ. हाँ. एवरी हाँ. टाइम द क्वेश्चन कम दैट कि मैम होता नहीं है, Yes. करे कैसे. ठीक है. तो द करे हाँ. हाँ. कैसे वाला लाइक इट नीड्स अ प्रैक्टिस. इफ यू आर talking about the cognitive strengthening of your brain, it needs a practice. And how do we do the practice? If I know that my pattern of thinking is overthinking, as we can say that sometimes like we have to understand in a way that like you said कि हम start करते हैं और फिर हम उसके flaws देखने लगते हैं, हम ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं. If it is analytical, Rosie, it's good. ठीक है. If you are like kind of SWOT analysis, you can tell. If you kind of pros and cons, you can tell. So if it is analytical thinking, it is okay. It gives you somewhere a healthier way of thinking pattern, as you are trying to understand one thing in a conceptual manner, in an analytical manner, और तुम उसको अच्छे से समझ रहे हो कि अगर मैं ऐसे गई तो ये होगा, ऐसे गई तो ये हुआ, और इसका ये फ्लॉज हो सकता है, इसके ये प्रॉस हो सकते हैं, ये और ये सारे कॉन्स हो सकते हैं, तो मुझे लाइक फाइनल डिसीजन मेकिंग में मुझे आसान होगा. इफ इट इज एनालिटिकल, इट्स ओके. तो देन इफ आई टेल यू, तो उसमें मैं ये कहूंगी कि अगर तुम मेरे पास वैसे आओगी तो आई टेल कि हाँ, शी इज अ गुड थिंकर, शी थिंक्स. ठीक है. तो इट इज लाइक पॉजिटिव, इट इज लाइक दैट कि मुझे, मैं अगर थिंक भी कर रही हूँ तो माई एनालिटिकल थिंकिंग है. पर व्हेन इट गोज सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर का मतलब है लाइक आई हैव स्टार्टेड कि हाउ विल आई डू, आई एम नॉट एबल टू Yes. स्टडी, it's very difficult to concentrate, though I have made the plans, but am I sure कि मैं ये पूरा कर पाऊंगी. मुझे विश्वास है कि like, मुझे लग रहा है, मुझे डाउट हो रहा है that नहीं नहीं, मैं कल का कोशिश भी करूंगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी. It is circular thinking that from where I have started, it ended there only. ठीक है. इट इज नॉट Yes. गोइंग अहेड. ठीक है. सो वी हैव हाँ. टू मूव लाइक दिस सर्कुलर थिंकिंग से हमको स्ट्रेट थिंकिंग में आना है, हमें एनालिटिकल थिंकिंग में आना है, हमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना है. सो ओवर थिंकिंग इज नॉट बैड इफ इट इज एनालिटिकल,
Overthinking is not bad if it is going straight. Overthinking is not bad if it is like for decision making. Overthinking is not bad if it is checks your impulsivity and gives you a like stop Rosie and think about this. I think कि ये मैटर सोचने वाला है तो तभी डिसीजन लेंगे तो इट्स गुड. ठीक है. सो इट्स लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच थिंकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं. तो इफ इट इज लाइक दैट सो आई हैव गिवन 4 थिंग कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, स्ट्रेट थिंकिंग है, अगर आप Decision. एनालिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग इट फॉर लाइक सॉर्ट एंड प्रोस कॉन्स एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, these thinkings are this kind of overthinkings are good. बट वेन एवर Yeah. यू फाइल की एक पॉइंट से शुरू किया और दूसरे फिर से वहीं पे खड़ा कर दिया, हाँ. तो इट्स अ सर्कुलर वे ऑफ थिंकिंग एंड ट्राई टू ब्रेक दिस सर्किल. Basically, we have to then again understand कि हमने then शुरू कहाँ से किया है. exactly then again it Yes. comes ki how to break the cycle. You have to practice your brain by writing it. ठीक है. टू राइटिंग Okay. वर्क इट्स लाइक ओके. जैसे मेरे मैं अगर अपना बोलूं कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन जो मुझे लगा था वो एक मेरी शादी थी और घर खरीदना था. तो लाइक वी डिड टेक द पेपर एंड वी हैड दैट. मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ दो वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ क्लाइंट्स बट आई एम टेलिंग यू वेरी जनरल दैट हमने पेपर लिया, हमने सारे असेसमेंट किया, हाउ मच वी हैव, हाउ कैन वी गो अहेड, what will happen, what will go. So like we can just think of these things so that how these things are going to hamper me, how these things are going to help me, what are the factors which are supporting me. We are just wrote everything and finally we came to decision that this is going to be okay. So many a Okay. times like this is the way we go with the analytical thinking. So if it is in that way, don't think that it's overthinking or it's procrastination or it's actually giving you a kind of bad. No, you are actually learning and you are practicing and making your brain to understand that going in an analytical way gives you a kind of analytical angle to Direction. everything and Yeah. automatically तुम्हारा impulsivity check out हो जाता है. Automatically your so many so called bad behaviors can be checked out because of your analytical thinking. So you will be called as thinker then. So Okay. go ahead with that kind of overthinking rather than circular pattern of thinking. हाँ, ठीक है. मतलब कि हमें बस इतना है कि समझने की जरूरत है कि हम कहाँ से शुरू किए हैं शुरू कर रहे हैं. और प्रॉब्लम क्या है एंड व्हाट वी वांट फ्रॉम दैट थिंकिंग या एक्चुअली. और इसलिए ये तभी पॉसिबल है जब हम लिखेंगे. अगर हम नहीं लिखेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि फ्रॉम वेयर वी हैव हाँ. स्टार्टेड. एग्जैक्टली मतलब हमें सॉर्टेड वहां पे भी रहने की जरूरत है जैसे हमने अभी क्वेश्चंस को सॉर्ट किया है. Yeah, exactly. Like try to एग्जैक्टली. write it down. Don't do it only for work. Try to do it for the personal things also. You'll feel Yes, better. yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are right. Okay, these were the cognitive components which I have sorted from our questions, from the questions being asked to us. The next component which came is बहुत बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम होती है. लोग कोई पहचान पाते हैं, कोई नहीं पहचान पाते. About insecurity. कहीं ना कहीं बहुत सोचने लगता है किसी चीज पे. ठीक है, अभी राइट डाउन का हमें पता चला कि वी कैन उससे हम बाहर आ सकते हैं ओवर थिंकिंग के मटेरियल से. लेकिन इनसिक्योरिटीज जो कि एक इमोशनल कंटेंट है अबाउट सर्टेन थिंग्स, वहां पे हम इतना बुरी तरीके से स्ट्रक हो जाते हैं फॉर अ पर्सन. जनरली वी हैव सीन फॉर अ प्लेस और फॉर अ थिंग, एनीथिंग इट कैन बी, इट जो अपन ऑन आवर नेचर. तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी हमें डेविएट करता है हमारे ओरिजिनल पर्सनालिटी से. तो वो डेविएशन और डिफरेंसेस हमें ऐसे इफेक्ट करता है कि वहां पे वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्फ. तो वहां पे कैसे डील करना चाहिए मैम विद द इनसिक्योरिटीज विद इन अस? Then again I'll come that yes, it is very subjective and it's very individualized. Of course, like insecurities comes from the experiences we have already. Okay, the person who have lost someone in their childhood and have some kind of experience of losing their loved one, so automatically that insecurity will shift to any kind of attachment style related to that gender, related to that thing. So automatically it will shift. Okay, like if I have lost my mobile somewhere, maybe doing having the कि गंगा जी गए और वहां पे like clicking the photos and the mobile fell down. ठीक है, if I have that feeling and I have that experience, so automatically my insecurity will get attached to
my mobile, that, or especially when I'll go to Ganga ji and like that. So not this example, we have so many examples. The person who have lost their parents in their childhood, the person who have lost their loved ones just like few days back, relationship issue में किसी को खो दिया है. So these things actually like give you the kind of experience that you have that insecurity in your mind, that the person is not like, I will lose that person also whom I am loving now. ठीक है. सो और बहुत सब्जेक्टिव फीलिंग होता है कि किसका क्या रहा है प्रीवियस एक्सपीरियंस, उसका अब कैसे वो आगे आएगा. तो उसको मैनेज करने के लिए आई से कि ये एक जगह है जहाँ पे हमें शुरू कर देना चाहिए समझना कि ये एक जगह है जहाँ काउंसलिंग रिक्वायर्ड हो सकती है. ठीक है. वी कैन लुक फॉर अ काउंसलर, अंडरस्टैंडिंग किसी साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से, कोई मेंटल हेल्थ के बैकग्राउंड से. सिर्फ काउंसलिंग के लिए आई कैन गो फॉर दिस कि मेरी इनसिक्योरिटी से अटैच हो रही है एंड आई एम नॉट एबल टू कोप विद दिस फीलिंग्स कि कैसे मैं बाहर आऊं. तो गो हेड विद दैट, बिकॉज हम इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड तो होते नहीं है कि हम इमोशनली एकदम से पार लगाइए, ठीक है वो आदमी मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चलो चलो आगे बढ़ जाओ. वी आर नॉट लाइक दैट. ठीक है. हम नहीं हो सकते इतने इजी और इतने आसानी से चले जाने वाले. तो हमें वहां पे तंग करता है वो सिचुएशन, वो इमोशन, और हम अपने आप आसानी से उभर नहीं पाते. Friends can also play a very good role here if they are good listeners and they can understand their past very well. They can check for the insecurities जो उनके लाइफ में है. बस अरे यार तो क्या इसमें पड़ा हुआ है, ये सब थोड़ी बॉदर करने वाला है. Like not going like that, not being judgmental. Here like empathize with the situation that why this insecurity is coming in and try to understand that insecurity. And I will suggest to the like यहाँ पे as because I can't do therapy here, तो I will suggest here also only कि अगर आपकी insecurity किसी से attach है ना, do share with that person if it is related to person. ठीक है. To communicate this to that person that I am feeling insecure about you. I'm not able to satisfy my like emotions related to you and I always feel कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे या तुम मेरे जिंदगी में नहीं रहोगे. The answer you get from that person ना gives you the like इसके लिए insecurity करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. वो दूसरा, वो जो जवाब देता है वो ऑटोमेटिकली आपको सेटिस्फाई करता है कि मैं बेमतलब ही जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा मेरे साथ है, जितना मैं चाहती हूँ उतना साथ मुझे मिल रहा है. तो ऐसे वो आपको हेल्प करता है. सो ऑलवेज लाइक शेयर दिस. अगर प्लेस से या थिंग से रिलेटेड है तो ऑफ कोर्स ये भी फिर थिंग से रिलेटेड है, सब्जेक्टिव चीज है और मटेरियलिस्टिक आपका अटैचमेंट है. इसका मतलब कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग, सम प्रॉब्लम दैट यू आर गेटिंग सो अटैच्ड टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स. तो इसका मतलब आपके इमोशंस कुछ ज्यादा ही इस तरह से हो रहे हैं कि इट इज गेटिंग अटैच्ड टू थिंग्स एंड प्लेसेस. तो वहां पे इसका मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर एक्चुअली मोस्ट इमोशनली सेंसिटिव. और इसका मतलब गलत नहीं है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू कंट्रोल दीज काइंड ऑफ इमोशन वेयर आई गेट अटैच्ड विद द मटेरियलिस्टिक थिंग्स. तो यहाँ पे अपने आप को जानना, समझना एंड देन डूइंग समथिंग फॉर दैट. ठीक है. तो डूइंग समथिंग इज अ कंप्लीट थेरेपी देयर अगेन कि we are actually trying to understand कि I am little emotional sensitive kind of person and how do I learn to control these kind of emotions, emotional sensitivity, जिसको हम लोग emotional quotient आजकल बोलते हैं कि जिसका emotional quotient बहुत strong है, उसका EQ बहुत strong है, तो automatically उसका social adaptability बहुत अच्छा होगा, उसकी इन सब चीज़ों से like adjustment बहुत अच्छा होगा, kind of thing. तो वहाँ पे फिर हम लोग बात करते हैं कि EQ कैसे strengthen किया जाए, अपने आप को प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए. तो there can be the exposure that you are losing things and still you are trying to manage and adjust with the things. You are trying to like materialistic अगर चीजों से है तो उसको हाइड किया और उसके बिना जीने की आदत डाली, खुद को अपने आप को एक्सपोज करा उसके बिना रहने की आदत डालने की. तो मटेरियलिस्टिक से तो आप ऐसे कर सकते हैं. बट अगर लोगों से है तो डू शेयर विद दोज पर्सन. दैट आई ऑलवेज से कि डू शेयर टू देम, टॉक टू देम. Always have this communication whenever you have these insecurities for them and share it. If the सामने वाला is not handling it in a proper way and become क्या तुम बार बार एक ही बात लेके आ जाती हो, कह दिया तो रहूंगा kind of expression, और मैं नहीं जा रही कहीं तुम्हें छोड़ के, मैं हूँ तुम्हारे साथ,
if these kind of expressions are coming in forefront by the other partners, that somewhere we can understand that that's why insecurity is coming, because the person is not giving that kind of Yes. approach to you. ठीक है, तो Yeah. automatically if the person is not understanding this insecurity, एक चीज तो clear आ गई कि आपकी और उसकी understanding बहुत अच्छी नहीं है. ठीक है, पेरेंट्स से रिलेटेड है तो ऑफ कोर्स इफ यू शेयर दे विल हैव डिफरेंट आंसर्स कि तुम बेकार परेशान हो रहे हो, कुछ होगा तो देखने के लिए हमने ये तैयारी तो कर रखी है, हम अपने आप को संभाल लेंगे, काइंड ऑफ आंसर यू विल गेट, एंड दे विल ट्राई टू पैसिफाई यू इन दैट वे, एंड यू हैव टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि मे बी ये लॉजिकल ब्रेन का पैदाइश है, तो मुझे थोड़ा अपने आप को समझाना पड़ेगा कि it's okay, like this insecurity is somewhere illogical because of my past experiences, and I have to understand the person is there, he is not going anywhere, I have to understand it. ठीक है, if like it all depends on the answer of the individual he is getting from the other person. Yes, yes. Yeah, वैसे भी sharing with others is the best stress management technique होता ही है वो. Yeah, तो yeah. कहीं ना कहीं वो fruitful हो सकता है. Okay, मैम, coming to the next, इसी की continuation में अगर देखें तो चाहे कोई भी एज रेंज हो, लेकिन शायद इस एज रेंज में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं उसकी वजह से, या कुछ भी हम लोग एंगर बहुत ज्यादा अपने अंदर एज अ ट्रेट फेस करते हैं. And we all know कि anger is something which we neither can suppress inside us, neither we can express as it is in that form also. क्योंकि अगर सप्रेस कर रहे हैं तो फिर हमें दिक्कत हो रही है, एक्सप्रेस कर रहे हैं तो सामने वाले से दिक्कत हो रही है. तो we know कि हमें कैसे बिहेव करना है, but we are not able to behave in that way because of our anger component. And similar side, we are deviating from their normal behavior. जैसा हमें behave करना चाहिए हम उससे deviate करते हैं. अगर आप जैसे insecurities की अभी बात की थी, तो इसमें एक DM था हमारे पास, उसी क्वेश्चंस में से हम आपको कंटिन्यू करना चाहेंगे. तो जैसे insecurity में when we go and ask, तो we are not prepared for it कि सामने वाला बंदा हमारे लिए ना भी कह सकता है कि नो नो आई एम नॉट रेडी फॉर दिस कॉम्पोनेंट. और वो चीज हमें अचानक से इतना अटैक करती है कि वी आर लाइक वी डोंट नो हाउ टू बिहेव देयर, और जो भी रहती है उसे भी हम खत्म कर देते हैं मैम. तो ये चीज, और उसके बाद स्ट्रेस बदलता है अलग कंपोनेंट में, फिर बदलता है क्रॉनिक स्ट्रेस में, क्रॉनिक स्ट्रेस से फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, एंड इट लीड्स टू डिप्रेशन. तो इस चीज को मैम एंगर कंपोनेंट को कैसे रिजॉल्व करना है एक्चुअली, देखो एज अ ट्रेट बन जाता है. As we say that anger, जैसे तुमने भी बोला कि एंगर एक इमोशन है, ठीक है, जैसे हम हैप्पीनेस फील करते हैं, जैसे हम वो फील करते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे इन्वायरमेंट में एंगर को निगेटिव इमोशन में कैटेगराइज किया हुआ है. वी ऑल नो दिस. तो व्हेन समथिंग इज कैटेगराइज एज निगेटिव, ऑटोमेटिकली हमारे पास प्रेशर होता है कि हम वो निगेटिव चीजों को अपने साथ नहीं रखें. ठीक है, तो वो सब पहला आता है कि इट्स अ नेगेटिव इमोशन और मुझे नहीं रखना है, या सामने वाला मेरे को कहता है कि डोंट शो योर एंगर, एंड मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है तुम्हारी गुस्सा, मुझे नहीं देखना, काइंड ऑफ थिंग. तो दे ट्राई टू एक्चुअली लाइक एक्सटिंग्विश दिस इमोशन. सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि like understanding it as a pain, understanding as a emotion, and making it like environment में अगर ये किसी तरह से हम create कर पाए कि like anger एक emotion है, it's okay to be angry. ठीक है, अब अगर it's okay to be angry तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, self harm नहीं होना चाहिए और harm to others नहीं होना चाहिए. As like when we cry and when we go and close our door and then we cry in the bathroom, तो वहां पे भी हम बेसिकली सेल्फ हार्म तो नहीं कर रहे हैं ना. अगर हम 10 मिनट रो लिए बाथरूम में जाके तो हम सेल्फ हार्म तो नहीं कर रहे. सो वॉट एवर द नेगेटिव इमोशन इज कमिंग विथ यू, इफ यू आर स्टिल एंग्री, यू आर नॉट डूइंग एनी हार्म टू योर सेल्फ एंड नॉट डूइंग हार्म टू अदर्स. इट्स ओके टू बी एंग्री. ठीक है, दिस इमोशन इज लाइक वैलिडेटेड कि हाँ हो सकता है, आप गुस्सा हो सकते हैं, आप थोड़ा सा लाइक चिल्ला सकते हैं, आप एक बार को एक्सप्रेस कर सकते हैं वैसे कि मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, काइंड ऑफ आ सकता है. ठीक है,
तो लाइक आप अपने अंदर जो अपना फीस क्लोज करके और अपने अंदर ऐसे करके क्लिंचिंग टीथ करके अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, तो एक्चुअली यू आर नॉट हार्मिंग योरसेल्फ एंड यू आर नॉट हार्मिंग अदर्स आल्सो, ठीक है। सो बेस्ट है कि अगर आप इस एक्सप्रेशन पे ध्यान रखें कि हम ये दो चीज ना करें, तो हम क्या कर सकते हैं इस इमोशन को निकालने के लिए। दो इट्स नेगेटिव, तो मुझे कहीं ना कहीं तो निकालना है। तो बेस्ट वे जो मैंने फॉलो करवाया है और करने को बोलती हूँ, वो होता है कि लाइक यू जस्ट गो टू दैट प्लेस वेयर यू नो दैट nobody is listening to you, nobody is actually like seeing you that what are you doing. So if that is the possibility, go to that place, scream out. You can throw like stones there. You can have that like writing work. Writing अगर आपने करना सीख लिया एंगर के टाइम पे, तो आपसे like you have control everything. फिर तो आप राजा हो गए अपने विचारों को, वैसा वाला मानना होता है कि अगर उस समय मैंने लिखना शुरू कर दिया तो यू आर द बेस्ट कंट्रोलर ऑफ योर इमोशन, देन यू आर नथिंग, यू आर एक्चुअली डूइंग इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। पर अगर नहीं, उतना पॉसिबल नहीं कि नहीं, उस टाइम पे मेरा मेंटल स्टेट ऐसा होता ही नहीं कि मैं बैठ के लिखूं, तो बेस्ट लाइक यू गो टू द प्लेस वेयर इट इज लाइक देयर इज नो वन, यू कैन स्क्रीम अलाउड देयर, यू कैन हैव द लाइक कुछ ऐसा चीज है जिसको आप थोड़ा सा सॉफ्ट चीज जिसको आप बीट करते हैं और आपको कुछ भी नुकसान नहीं होता, यू कैन स्टार्ट थ्रोइंग बॉल्स ऑन द वॉल एंड प्ले विथ इट इन दैट वे। तो बस दो चीज दिमाग में रखना है, वी आर नॉट हार्मिंग आवरसेल्व्स एंड वी आर नॉट हार्मिंग एनीवन एल्स। तो ये दो इंटेंशन और एंगर को आप अटैच कर दोगे तो एंगर इज नोवेयर बैड, ठीक है। एंगर एक्सप्रेशन इज इवन नोवेयर बैड। मुझे बस ये ध्यान रखना है कि मुझे अपने आप को और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने देना। ऑटोमेटिकली दीज वॉट एवर द एक्सप्रेशन यू आर डूइंग इज ओके, ठीक है। इवन इफ यू आर स्क्रीमिंग एंड यू नो दैट माय पेरेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग इट इन अ गुड वे कि एंगर ओके होता है, इतने अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स हैं। अगर आपका पार्टनर ऐसा है कि वो समझता है कि हाँ स्क्रीमिंग इज ओके एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग इन दैट वे, तो इट्स ओके। मतलब लाइक यू कैन स्क्रीम इन फ्रंट ऑफ देम ऑल्सो एंड लेट देम नो कि मैं गुस्सा में ऐसे चिल्लाती हूँ, तो मे बी दैट पार्टनर विल स्माइल एंड हैव द थिंग कि अभी छोड़ दो, थोड़ी देर बाद इसको बात करेंगे, ये तो ऐसे ही चुड़ैल हो जाती है गुस्से में, काइंड ऑफ थिंग। जो जो फ्रेंड्स बेसिकली आपके गुस्से के साथ कई बार करते हैं ऐसे रिएक्शंस, दे हैंडल इट वेरी वेल, ठीक है। तो लाइक दैट, जैसे फ्रेंड्स हैंडल करते हैं वैसे अगर आपका हर इन्वायरमेंट आपके एंगर को हैंडल करने लगे ना, तो आप बहुत ज्यादा नहीं फील करेंगे लाइक यू आर गोइंग बैड इन एंगर स्टेट। सो सबसे पहले तो अपने आप को समझना है कि इट्स अ नॉर्मल एक्सप्रेशन, फील इट लाइक जैसे दूसरे चीजों को फील करते हैं, एंड हैव द क्विक थिंग इन योर माइंड। वो प्रैक्टिस कर लीजिए कि क्विक थिंग मैं क्या कर सकती हूँ। गोइंग इन द लाइक मैं वॉशरूम में जाऊं, वहां जाए, जैसे बच्चे पे गुस्सा आता है तो व्हाट वी डू कि उसके ऊपर चिल्लाने की जगह आई डू सेपरेट फ्रॉम हर, मैं कहीं ऐसी जगह चल जाऊंगी वो मुझे देखे ना, और मैं बड़बड़ा लेती हूँ जो मुझे उसको डांटने का मन होता है, ठीक है। तो आई डू प्रैक्टिस की ये डांट दिया तो वो देख नहीं रही, वो सुन नहीं रही, उसको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, ठीक है। लाइक दैट इफ आई एम एंग्री एट माय पार्टनर, इफ आई एम एंग्री एट माय लाइक एनीथिंग, किसी बात से मुझे गुस्सा आ गया कि अचानक से आप घुसे हैं कार के और सामने कोई ड्राइव करके गलत तरीके से आ गया, तो आपको रोड पे गुस्सा आ गया, तो व्हाट विल वी डू कि हम निकल के फाइट करना शुरू कर दे, वो अच्छा है, या वे लाइक आई जस्ट स्टॉप द कार, डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ट्राई टू रिलैक्स माई सेल्फ एंड देन गो अहेड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देन आई एम नॉट हार्मिंग माई सेल्फ, आई एम नॉट हार्मिंग अदर्स, दैट इज द ट्रू इंटेंट आई हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर व्हेन आई एम एंग्री। बी एंग्री, इट्स ऑलवेज गुड, ठीक है। लाइक इफ यू आर गोइंग, बड़ा होना और गुस्सा होना इज लाइक समथिंग giving you a kind of power or control also, so it gives you a kind of satisfaction when you get angry, but try to take care of this thing that you are not going to harm anyone, you are not going to harm yourself. So जैसे स्ट्रेस के बारे में हमने कहा ना, पॉजिटिव स्ट्रेस, पॉजिटिव एंगर भी होता है, ठीक है। तो इट इज गुड, ठीक है। एक्चुअली मतलब बेसिकली ये होना चाहिए कि ये हमारे पर्सनालिटी का मेन ट्रेट ना हो, बट
it is like a emotion to us, and we should be like selfish also and empathetic also, कि हम दूसरे के लिए भी सोचें एंड और खुद के लिए रोजी, भी। यहाँ पे एक बात ऐड करूंगी, एंगर के साथ सबसे बुरा क्या होता है ना, लोग अपने साथ बहुत टॉर्चर करना शुरू करते हैं। लाइक Yes, आई ma'am. एम अ पर्सन हु इज वेरी एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे रिलैक्स रिलैक्स विद दिस थिंग, यू आर लाइक actually to saying this and making yourself as a like I am that kind of personality and मुझे बहुत गुस्सा आता है kind of you are actually creating yourself that kind of person. Don't torture yourself, go soft with yourself, ठीक है। एंड लाइक Self love. डू या अपने अपने यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को ये जताना है कि आई एम like being angry is okay as you are getting angry, as okay as you are getting happy, as okay as you are getting emotional on few things. I get angry on few things, मुझे मेरा ये emotion थोड़ा prominent रहता है, it's fine, but I'm not harming anyone. That is the first Yes, thing I ma'am. have to understand, ठीक है। So इतना attack अच्छे these से two मैम आप things. इस चीज को बताई है, एंगर को, कि हम्म हमारे पास एक मैसेज भी आया है, दैट यू हैव एक्सप्लेन हाउ टू एक्सप्रेस आवर एंग्री स्टेट इन सच अ ब्यूटीफुल मैनर। मतलब पीपल थैंक आर यू। आल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली एंगर, ओवर थिंकिंग, ये सब मैम इतना बेसिक प्रॉब्लम्स है कि कहीं ना कहीं ये सब क्यूमुलेट होके हमारा मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम अराइज कर पाता है। सही बात। कमिंग टू द नेक्स्ट मैम, स्लीप की प्रॉब्लम, अगर उसको बेसिक वे में हम कहना चाहें तो इट कैन बी लाइक एंगर कहिए, या फिर ओवर थिंकिंग, या फिर आपका प्रोक्रेस्टिनेशन, इनसिक्योरिटीज, सब हमारा एक पैटर्न में बहुत ज्यादा बदलाव लाता है, वो है हमारा स्लीप पैटर्न। जब हम बेड पे जाते हैं, द बेड टाइम, गोइंग टू स्लीप टाइम और स्पेंडिंग आवर्स ऑन बेड, वो एग्जैक्टली उतनी नहीं होती है। स्पेंडिंग आवर्स ऑन आवर बेड इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड, मतलब हमें कितना सोना था वो नहीं है, हमने लेकिन 10 घंटे बेड पे बिताया है, बट 10 घंटे में से 4 घंटे ही हम सो रहे होते हैं, और वो इतना डिससेटिस्फेक्शन देता है कि उसकी वजह से नेक्स्ट डे वापस से हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, हमारा एंगर स्टेट आएगा, या फिर हमारा मूड प्रॉब्लम होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, ऑल आर ऑब्वियसली इंटरलिंक्ड। बट ये स्लीप का जो मैम प्रॉब्लम है, इट इज लाइक रिलेटेड विद बेड टाइम एंड स्पेंडिंग आवर्स ऑन बेड। तो इफ या मतलब सबको अवेयरनेस तो इतनी होती है कि हाँ मुझे स्लीप का प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू गेट माई सफिशिएंट स्लीप, so when I have realized it, so what should I do in order to make myself comfortable, make myself satisfied with the sleep pattern, with the sleep thing? Like generally, we are talking about which age group, Rosie? We are talking here about 20 to 25 years. 20, Like 25 years. this is See, age like, of of course, I asked this question because somewhere sleep is related to like every age में sleep का अलग अलग demand है, every age body yes की ma'am. requirement sleep की अलग है, considering और every age में हमारी activity और mental state different होता है sleep से related, that's why I asked this question. ठीक है, तो लाइक अब मैं यहाँ पे बात करूंगी इस एज ग्रुप के लिए जो यंग है, जो बहुत एंथुजियास्ट है, जिसके पास कहीं ना कहीं दे आर एक्चुअली फुल ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी, और उनके प्लानिंग्स और उनके लाइफ में बहुत सारी चीजें उनको दिखाई दे रही होती हैं कि ये पड़ाव भी आएगा, ये पड़ाव भी होगा, ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है। ये सारी चीजें आप बेड टाइम पे करते हो जनरली, ठीक है, बिकॉज वही एक Yes. टाइम है जो आप लगता है कि हाँ ये अब मेरा मी टाइम है, नाउ स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर Talk about my own self. Yeah. सेल्फ। तो बेसिकली आपका मी टाइम बेड से अटैच होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस एज में सबसे ज्यादा आपने अपने मी टाइम को बेड से अटैच किया, ऑटोमेटिकली आपकी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम, जो भी जैसी भी आपकी थिंकिंग पैटर्न है, आपकी वरीज, आपके टेंशन सब उसी टाइम पे आने शुरू हो जाते हैं। कैन यू डू वन थिंग, बस सब लोग जो सुन रहे हैं, बस एक चीज आप कर सकते हो, अगर बाद में भी सुनो तो make your chintan time other than bed time in your daily routine. Is it possible? Like you are here and I'm asking you this question कि considering your complete daily schedule, अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम अपने बेड टाइम पे जाने के जगह जाओ और जब सोच आने लगे, तो क्या तुम अपने आप को ये मैसेज दे सकती हो कि मेरे चिंतन का समय कल है, या
my thinking time starts on 3 o'clock in the evening, so I'll think that time. क्या ये possible है कि तुम्हारा thinking का time bed time ना होके कोई और time हो? I'm just asking यस you. वी कैन स्केड्यूल, हाँ हाँ हम लोग सोच सकते हैं, अगर सोच लिए ऐसा तो फिर हो सकता है, हो सकता पॉसिबल है. है. तो दैट इज द थिंग. हाँ. फर्स्ट थिंग लाइक ये करना है कि इफ इट इज लाइक यू सी दैट योर स्लीपिंग टाइम इज एट 2 एंड योर वेकिंग टाइम इज लाइक 7 8 वॉट एवर इज लाइक. पर जनरली मैंने देखा कि तुम्हारे एज ग्रुप में बहुत लेट होता है, लाइक 9 10 11 तक भी लोग कहते हैं कि मैं उठता हूँ और 2 3 बजे हम सोते हैं. आई आई लाइक ये बहुत जनरल सा कॉमन. मुझे सुनने को मिला. ठीक है. तो नाउ इफ यू फील दैट दिस क्लॉक जो ये 2 से 9 का या 2 से 11 का टाइम है, ये मेरे लिए ओके नहीं है. इट इज नॉट गिविंग मी सेटिस्फैक्शन. ठीक है. तो व्हाट टाइम गिव्स यू सेटिस्फैक्शन? इज इट 10 to 6? इज इट 12 to 8? व्हाट टाइम गिव्स यू सेटिस्फैक्शन? बिकॉज 7 से 8 घंटे तो सोने ही है. एम आई लॉन्ग स्लीपर तो मुझे शायद 9 घंटे सोने होंगे. मैं शॉर्ट स्लीपर हूँ तो मुझे 6 7 घंटे में भी हो जाएगा. तो पहले तो वो आइडेंटिफाई करो कि व्हाट काइंड ऑफ स्लीपर आई एम. दैट आई एम अ लॉन्ग स्लीपर, दैट मीन्स इक्वल टू around 9 hours. I'm a short sleeper, that is somewhere around 6 to 7 hours. ये पहले आइडेंटिफाई करो, फर्स्ट थिंग. देन मेक अ शेड्यूल दैट व्हाट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन. Is it 10 to 6? Is it 12 to 8? Is it what time? Just plan that time. ठीक है कि ये टाइम मुझे अच्छा लगता है. और उसके बाद उस टाइम पे वो टाइम पे जाना शुरू करो बेड पे कि माई टाइम इज 12 to 6, तो आई हैव टू गो टू बेड एट 11. ये आदत डालनी होगी कि 11 में मुझे सोने का प्लान शुरू कर देना है कि एज लाइक माई कंफर्टेबल टाइम इज, स्लीपिंग टाइम इज 12, वेकिंग टाइम इज 8. तो मुझे जाना शुरू कर देना है 11 बजे. तो मुझे क्या करना है जाने के लिए? तो मुझे ध्यान रखना है मेरा बेड क्लीन हो, साफ हो, उसमें कुछ ऐसे जो ठूस के रखते ना कॉपी सारे एक साइड, उसको साइड की और सो गए, वैसा वाला आदत नहीं. कम से कम कॉपी पाइल अप करके किसी टेबल पे या चेयर पे रख दिया, वो करना है. लाइक एक बार उसको तौलिए से झाड़ दिया, वो आदत डालनी है रोज. लाइक वॉश योर लेग्स. अगर लाइक इफ बेड शावर तो और भी अच्छी आदत है. तो वॉशिंग योर लेग्स एंड हैविंग द बेड शावर, क्लीनिंग योर सेल्फ बिफोर गोइंग टू बेड. हैव सम वार्म मिल्क और वार्म वाटर, थोड़ा सा सिप सिप करके पिया. एंड देन गोइंग टू बेड विद द लिटिल ऑफ प्रेयर्स एंड वॉट एवर यू बिलीव कि एक चैंटिंग जैसा कुछ करना है. एंड डू दैट. एंड देन थॉट कम्स एंड से अभी तुम्हारा चिंतन का टाइम नहीं है, कल 3 बजे बात करना. से टू योर हेड हाँ. टू दिस कि अभी मेरा चिंतन का टाइम नहीं है, मैं ये कल करूंगी. ठीक है. कल 3 बजे, 3 बजे आना, अभी नहीं. ठीक है. तो लाइक सजेस्ट योर सेल्फ लाइक दिस and then start doing it. ठीक है. You like it is not necessary that you will sleep at 12. नहीं सो पाओगे तुम क्योंकि तुम्हारी आदत कल भी नहीं थी. तो अगर नहीं सो पाओगे तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे उस बेड को छोड़ देना चाहिए जहां मैं सोती हूँ. ठीक है. Go to some place where we can sit, just like a chair in the room or any kind of thing जहाँ पे बेड से मैं थोड़ा अलग हो गई हूँ. And I am taking a kind of book जो मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बुक नहीं है कि मैंने एक मजेदार नॉवेल उठा ली और बड़ा मजा आ रहा है सुनने में, पढ़ने में, वैसी नहीं. मतलब लाइक काइंड ऑफ बोरिंग बुक, यू कैन पिक इट अप, मे बी एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक. वो लिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया. And when you feel dizzy and sleepy, then only you go on bed. ठीक है. So like reading stories always give you that thing because it is somewhere away from your natural world. जो दूसरे टाइप की स्टोरीज होते हैं वो भी अच्छा रहता है. अगर if you don't like to read text books, then go to bed and then like try to sleep and then again give yourself that message. ठीक है कि नहीं, अभी चिंतन का समय नहीं है, मैं अभी नहीं पढ़ूंगी, सॉरी अभी नहीं सोचूंगी, मैं कल 3 बजे सोऊंगी. तो हम पर उठने का टाइम हमें फिक्स रखना है. इवन इफ यू हैव लाइक स्टार्टेड डूइंग दिस साइकिल कि मैंने डिसाइड किया 8 o'clock मैं 9 नहीं बजाऊंगी, मैं 10 नहीं बजाऊंगी, मैं 8 बजे उठ जाऊंगी. मेरा आफ्टरनून का कोई वो नहीं होगा, नैप नहीं होगा, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड माई टाइमिंग्स. ठीक है. एंड देन स्टार्ट द टाइमिंग्स की फिर धीरे धीरे विल सी कि व्हेन यू विल कम डू दिस प्रैक्टिस देन ऑटोमेटिकली विल सी कि धीरे धीरे तुम्हारा रात का जो 2 बजे का टाइम था वो ग्रेजुअली 12 बजे पे शिफ्ट हो गया.
तो इन दिस वे यू एक्चुअली लाइक जो तुमने कहा कि बेड टाइम वेस्ट करने वाला जो आदत होता है कि हम बेड पे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, वो कंट्रोल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली गिल्ट शेड ऑफ हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सर दर्द इरिटेशन पहले भी था, डिससेटिस्फैक्शन पहले भी था, वो अभी भी थोड़ा सा रहेगा, बट एज यू आर ट्राइंग एंड पुटिंग एफर्ट्स यू विल फील गुड इनसाइड कि मैं कोशिश कर रही हूँ एंड आई कैन मैनेज इट इन अ फ्यू डे। तो ऑटोमेटिक सजेशन देते हुए व्हेन यू विल प्रोसीड ग्रेजुअली सी की पहले 2 बजे आता था, अब 1:30 बजे आ जाएगा, 1:45 में आ गया है, फिर ग्रेजुअल सी की 1 बजे आने लगा, एंड ग्रेजुअली विल फाइंड दैट इट विल कम मोर टूवर्ड्स योर टारगेटेड टाइम। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक होता है। एंड ऑफ कोर्स स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना, कैफीन नहीं लेना 7 बजे के बाद, किसी तरह की कॉफी नहीं पीना, ये सब तो ध्यान रखने वाली चीज है। वी कॉल इट अ स्लीप हाइजीन। तो ऑलवेज गो थ्रू इट एंड मेक योर स्लीप हाइजीन नोट्स कि स्लीप हाइजीन में क्या क्या ध्यान रखने का, इफ यू आर रियली सफरिंग फ्रॉम द स्लीप प्रॉब्लम। ठीक है, एंड इफ यू फाइंड दैट इट इज कंफर्टेबल, लाइक यहाँ हम लोग थोड़ा टाइम से ऊपर जा रहे हैं, पर मैं एग्जाम्पल दूंगी। एक क्लाइंट मेरे पास आया और हमेशा कहता था मैम मैं 4 बजे नहीं उठना, 4 बजे उठना है, और मैं एक ही सवाल उससे पूछती थी तो मुझे कारण बता दो क्यों उठना है। तो वो बोलता था ये हेल्दी हैबिट है। ठीक है, हम बोले हेल्दी हैबिट है, तुमको क्यों उठना है? लाइक saying his name, I always ask कि why dash person needs to wake up at 4, मुझे ये आंसर चाहिए। अच्छी हैबिट है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, तुम क्यों उठना चाहते हो, मुझे इसका आंसर चाहिए। फिर लाइक आफ्टर 1 month he came for the session when like आता था बीच में, but for this thing when he came after 1 month and he said कि मैम आपके इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, तो फाइनली मुझे लगा कि मैं ही गलत जबरदस्ती अपने आप को ठेल रहा हूँ कि मुझे 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। एंड मुझे ये पता चल गया कि नो आई एम ओके कंफर्टेबल एट 8 o'clock एंड इट्स फाइन टाइम फॉर मी। ठीक है, तो वो सोच के उसको नींद थोड़ी उसकी हमेशा डिस्टर्ब रहती थी कि मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 4 बजे उठना है। तो द थॉट मतलब वी टेक एट द, हाँ यस यस मैम। कंटिन्यू करो तुम जो बोल रही थी। नहीं मैम, एक क्वेश्चन आया था हम्म। आपके, एक अंकुर का क्वेश्चन है कि प्लीज एनलाइटन हाउ टू डेवलप स्लीपिंग हैबिट। तो वही है कि जो आप बता रही हैं, तो वो बता रहे शायद थे, तो उन्हीं आई के होप अंकुर क्वेश्चन। आपको ये आंसर मिल गया होगा कि दीज आर द हैबिट्स। कहीं ना कहीं स्लीप हाइजीन के मेथड्स लिख के रखिए। अपने थॉट्स जो उस समय आते हैं उसको अपने मेडिटेशन टाइम या अपने थिंकिंग टाइम जो आपने अगले दिन के लिए दिन के टाइम शेड्यूल किया है, सुबह के टाइम शेड्यूल किया है, उस दिन उस समय के लिए पोस्टपोन करिए। ब्रेन को कहिए, अपने हेड को कि बस भाई अभी नहीं सोचना, कल सोचेंगे तेरे बारे में। तो ये अपने आप को ऑटोमेटिक सजेशंस दीजिए और करिए, उसको एक्चुअली फॉलो करिए। डोंट स्टार्ट थिंकिंग इन दोज थिंग। एंड लाइक जो हमने बोला स्लीप हाइजीन के सारे एक एक स्टेप को, मतलब ये पूरा एक पेज हो जाता है जब हम स्लीप हाइजीन के स्टेप्स लिखना शुरू करते हैं कि हाथ पैर धोना है, बेड झाड़ना है, लाइट ऑप्टिमम होना चाहिए, टेम्परेचर ऑप्टिमम रखने की कोशिश करिए, बेड पे क्लटर्ड चीजें मत रखिए, नींद ना आए तो वहां से उठ जाइए, गर्म पानी या गर्म दूध पीजिए, कैफीन मत लीजिए। तो आप ये सब लिखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपका एक पेज भर गया स्लीप हाइजीन से। तो दो ज्यादा स्लीप हाइजीन का मेथड, एंड आई थिंक नेट पे भी अवेलेबल होगा, मैंने सर्च नहीं किया है, तो इट इज एक चीज देयर। मिस ठीक हो है, गया मैम, फोन हाँ भी दूर रखिए। फोन भी दूर रखिए, लाइक डोंट टेक द फोन टू द रूम ऑफ कोर्स। तो वो हटाने की सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बेसिकली मैम के हम्म एक्सपीरियंसेस और मैम के सजेशंस के अकॉर्डिंग वी फॉलोअर्स हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। पहला चीज कि हम लोगों को अपने बारे में नहीं सोचना है, उस वक्त सोना है, सिर्फ आराम का सोचना है। और क्योंकि दूसरी चीज, मी टाइम इज गुड एट विद स्लीप, तो दैट मी टाइम ऑफ थिंकिंग मी टाइम शुड बी इन द मॉर्निंग और इन द वेक अप टाइम, जब जगे हुए हो हाँ तब मी टाइम करो रादर देन अटैचिंग हाँ, विद द स्लीप टाइम। मतलब आप सोचिए अपने बारे में, पर कभी और बेड पे हम्म सोने वक्त नहीं। हम्म और दूसरी चीज की कोई बात नहीं, अगर आपको नींद तुरंत में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, स्लीप हाइजीन प्रैक्टिस कर रहे हो, स्लीपिंग हैबिट अपनी कोशिश कर रहे हो बदलने की और नहीं कर पा रहे हो, तो बस आप एक काम कर सकते हो कि आप धैर्य रखो, है ना मैम? या धैर्य रखिए, ग्रेजुअली आपका मतलब ठीक हो लाइक जाएगा। आई वुड लाइक टू ऐड हेयर, तुम लोग लाइक यंग जनरेशन में ये दिक्कत क्यों आ रही है, समवेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड मेलेटोनिन जो स्लीप हार्मोन होता है, वो
डार्कनेस जैसे जैसे इन्वायरमेंट में बढ़ेगा यानी सन हटेगा, वैसे वैसे आपका मेलेटोनिन